future knocking at your door. Old rules breaking, new rules rising. On the blockchain, truth is written forevermore. Infinity, light it up, burn the fear away. Divine on fire. We're not just here, we're here to stay. On the blockchain, every name is written. From the streets you came from to the stars we're rising. Infinity, stand up, show the world what we can do. No more shadows, no more limits. The future shines in you. Join the protocol, join the mission, join the crew. We're the revolution. Infinity is the truth. Once the money lived in vaults no one could see, now it lives on a chain, open free in keys. Blockchain is the ledger, blockchain is the law. No more hidden powers hiding behind the door. Every trade, every safe, every move on display. No more insider hands stealing the game away. Transparency is the weapon, trust is the code. The blockchain is the battlefield and the future is the road. Infinity Now is not just a coin in your wallet, it's a living protocol of self-driving rocket AI powers smart and fast. It learns as the world spins, balancing rewards, protecting the wins. Governance in your hands, not in a boardroom box. Every vote you cast builds a different kind of stock. Stay, earn, share, and climb, grow with every ride. You're not just a user, you're a builder on the inside. If you want to be part of something bigger than a trend, where the people are the power and the protocol won't bend. If you want to see the old system fall to their knees, then it's time to join Infinity Down and ride the endless breeze. Infinity Down, light it up, burn the fear away. Fire, fire, we're not just here, we're here to stay. On the blockchain, every name is written. From the streets you came from to the stars we're rising. Infinity Down, stand up, show the world what we can do. No more shadows, no more limits. The future shines in you. Join the protocol, join the mission, join the crew. We're the revolution. Infinity Now is the truth. India to the world, from Asia to the West. Every language, every culture, we're all in this quest. Blockchain doesn't see borders, race, or class. It sees a single human dream moving fast and fast. When truth sets you free, truth will set you free. A future isn't just ahead, it's already inside of me, inside of you, inside of we. So if you're ready to trade, fear for faith. If you're ready to build something that lasts in every phase, download the wallet, stake, and log in, because the revolution is not coming, it's already beginning. Post the link, share the vision, pull your friends along. From the first click to the final ride, we get more when stay strong. Infinity Down, the day by way. The blockchain storm, tomorrow starts now. Your name is part of the norm. All right. Good evening everybody. I hope आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं और अब समय हो गया है आज के जबरदस्त बहुत ही एक्साइटिंग से सेशन की शुरुआत कर देने का. And yes, for the first time This is me, Priya, and I will be your host for today's evening. तो आज मैं आप सभी लोगों के बीच में Infinity DAO का ये पूरा सेशन मैं लेने जा रही हूँ. And of course, we have our co-host with us today, Mr. Manu, who is also with us today. But I will be taking the whole session for today. So उम्मीद करती हूँ आपने अपनी पूरी टीम को यहाँ पर ज्वाइन करवा लिया होगा. आप सभी के जो भी टीममेट्स हैं या जो भी नए लोग जिन्हें भी आज के इस सेशन में आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, मेक श्योर कर दीजिए कि हर कोई इस सेशन में ज्वाइन कर ले, बिकॉज what we are about to witness, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम समझने जा रहे हैं ना, यकीनन मैं आप लोगों से कह सकती हूँ ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. तो इसीलिए सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे. आज ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 से 45 मिनट्स के अंदर आई विल बी टेलिंग यू व्हाट दिस होल अपॉर्चुनिटी इज ऑल अबाउट. और इतना कह सकती हूँ कि आज के सेशन के बाद आपको ऑर्डिनरी तो फील डेफिनेटली नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग ही आपको जरूर आएगी. राइट. तो अब अगर
आप लोगों के पास प्रॉपरली मेरा वॉइस आ रहा है? और अब मैं अपना स्क्रीन भी आप लोगों के बीच में शेयर कर देती हूँ. सर, कैन यू प्लीज, आई एम नॉट बीइंग एबल टू शेयर दिस. यस, आई एम नाउ. ओके, फाइन फाइन, थैंक यू. Okay, so just a second. Okay, so now I believe that my screen is perfectly visible to you और मेरा voice भी आप लोगों को clearly सुनाई दे रहा है. If yes, तो मैं चाहूंगी एक बार जल्दी से सभी लोग अपना hand raise कर दीजिए, अपने अपने reactions दे दीजिए, या फिर chat box is all open, तो आप वहां पर भी message करके हमें बता सकते हैं that yes ma'am, you are perfectly audible, आपका voice clear है, आपकी screen भी perfectly visible, आप ये बता देंगे, so that will be गुड फॉर मी. एक बार जल्दी से सभी लोग अपने अपने रिएक्शंस दे दें. मैं परफेक्टली ऑडिबल? ओके, काफी सारे रिएक्शंस आ गए. वेल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, तो चलिए आप ज्यादा देरी नहीं करेंगे. अब आज के इस बहुत ही धमाकेदार, इस बहुत ही एक्साइटिंग से सेशन के एक एक्साइटिंग शुरुआत अब हम करते हैं. क्या कहते हैं? रेडी हैं सभी लोग? ओके ओके, ऑडिबल एंड विजिबल. ओके ओके, वेल थैंक यू. ओके, ऑलराइट, थैंक यू. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. Okay, so well, hello, namaskar, adab, sat shri akal, welcome and a very warm good evening to each one of you present over here today. My name is Priya, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तहे दिल से इन्फिनिटी डाउ के इस लाइफ ऑल्टरिंग जूम सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ. एंड दोस्तों, आपको बताना चाहती हूँ कि आज का सेशन एक नॉर्मल वेबिनार नहीं होने वाला है. आज हम बात करने वाले हैं एआई की, ब्लॉकचेन की, एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम की जो डिफाई इंडस्ट्री को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का विजन रखता है. और दोस्तों, हिस्ट्री गवाह है कि जो लोग टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं ना, वही लोग फ्यूचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन अपनी क्रिएट करते हैं. सबसे पहले इंटरनेट आया, फिर सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन आया, और अब एआई और ब्लॉकचेन मिलकर फाइनेंशियल सिस्टम को बदल रहे हैं. और इन्फिनिटी डाउ एग्जैक्टली इसी फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शंस में बिल्ड किया गया एक पावरफुल इकोसिस्टम है. तो इसीलिए नेक्स्ट 40-45 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को प्रॉपर्ली पूरा एंड तक जो है अटेंड कीजिएगा. डू नॉट लीव द सेशन इन बिटवीन, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिएगा और एंड तक बने रहिएगा. बिकॉज हो सकता है कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपका पूरा, वो कहते हैं ना, दुनिया देखने का और जो है लाइफ जीने का एक नजरिया बदल दे कि यार दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी. तो इसीलिए जस्ट रेडी टू बी अमेज्ड, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मैं शुरू करने जा रही हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फुल अपॉर्चुनिटी इज ऑल अबाउट. ऑलराइट, ओके, सो चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इन्फिनिटी डाउ. इन्फिनिटी डाउ एग्जैक्टली क्या है? सबसे पहली चीज, अगर कोई भी आपसे भी पूछता है कि इन्फिनिटी डाउ क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इन्फिनिटी डाउ दुनिया का सबसे पहला एआई पावर्ड प्रोटोकॉल डाउ बोला जाता है. सबसे पहला प्रोटोकॉल डाउ, यस. और इसीलिए इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया गया है एंडलेस कंपाउंडिंग, इंटेलिजेंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट और डायनामिक इकोसिस्टम ग्रोथ के ऊपर, राइट. और मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में आने वाले कम से कम 10 से 15 मिनट तो इन तीनों शब्दों को मैं बताने वाली हूँ कि एंडलेस कंपाउंडिंग ई साइकिल क्या है, ये अडैप्टिव स्टेकिंग मैकेनिज्म, इंटेलिजेंट लिक्विड मैनेजमेंट एंड डायनामिक ग्रोथ engines. What all these 3 and 4 words are all about, ये exactly क्या है, ठीक है. और honestly speaking दोस्तों, इन्फिनिटी डाउ का पूरा फोकस सिर्फ अर्निंग पर नहीं है, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और इंटेलिजेंट इकोसिस्टम ग्रोथ के ऊपर है, राइट. तो इन तीनों ही चीजों के बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन, सारी बातें यहाँ पर करेंगे, सारी चर्चा करेंगे. और मैं आपको बताऊंगी कि इन्फिनिटी डाउ के साथ शुरुआत करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा अरे ये कैसे कैसे वर्ड्स है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. अगर आज आप पहली बार आए हैं तो भी आप लोगों को, अगर आप एक स्टूडेंट है, आप एक होम मेकर है, एक रिटायर्ड पर्सन है, आप टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा जो है जानते नहीं है चीजें, तो भी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत आसान शब्दों में आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको प्रॉपर्ली समझा सकूं, राइट. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली कंपनी का मिशन और विजन क्या है. कंपनी का विजन क्या है, ये इकोसिस्टम फ्यूचर में अचीव क्या करना चाहता है, और अपकमिंग प्रेजेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप हम सब यही समझने वाले हैं. तो दोस्तों, इन्फिनिटी डाउ का जो विजन है वो है दुनिया का सबसे पावर नंबर 1 क्या है, नंबर 1 आपका एआई पावर्ड प्रोटोकॉल डाउ इकोसिस्टम बनाना. एक ऐसा इकोसिस्टम जो इनफाइनाइट कंपाउंडिंग पर वर्क करता हो. आपको इनफाइनाइट टाइम
जो है इनकम जनरेट करके देता रहे, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन पर ग्रो करे और इंटेलिजेंट एक्सपेंशन मॉडल पर जो है स्केल। और इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इन्फिनिटी डाउ का गोल सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करना है। और मिशन क्या है? मिशन प्योरली कम्युनिटी ओरिएंटेड है, कम्युनिटी ग्रोथ, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, स्पेशली डिफाई सेगमेंट में एक इंटेलिजेंट इकोसिस्टम क्रिएट करना, राइट। तो दोस्तों अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पर समझते हैं और वो है डाउ, राइट, डाउ। और आज मार्केट में ना डाउ जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड, आपको मैं हर एक चीज बताऊंगी कि यहाँ पर क्या है और हम डाउ के बारे में क्यों बात करें। और बहुत से लोग तो ये भी पूछते हैं कि डाउ का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों डाउ मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। और आज मार्केट में एग्जैक्टली अगर कोई डाउ पूछे क्या है तो ये एक ऐसी कम्युनिटी लेड ब्लॉकचेन बेस्ड एंटिटी है जो कि गवर्न बाय कोड होती है, ना कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी। और कोड कौन से? जो कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे मैंने टफ से डिफिकल्ट से वर्ड्स बोल दिए, बट घबराइए मत, मैंने कहा ना सब कुछ समझ आएगा आपको। और आज मार्केट में ना डिफरेंट तरीके के डाउ जो है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन्फिनिटी डाउ स्पेशली एक प्रोटोकॉल डाउ कैटेगरी में आता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों प्रोटोकॉल डाउ को सबसे पावरफुल डाउ मॉडल में से काउंट किया गया। अब सवाल ये आता है कि प्रोटोकॉल डाउ होता क्या है दोस्तों? सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो नॉर्मली बहुत सारे डाउ इकोसिस्टम में होते हैं और उन सभी में मोस्टली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होता है, यानी कि इंसान की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ डिसीजंस मैन्युअली लिए जाते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल डाउ का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम या ऑलमोस्ट जीरो होता है, यानी कि सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ऑटोमेटेड मॉड्यूल्स के ऊपर ऑपरेट करे, राइट। और इन्फिनिटी डाउ भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। यहाँ इकोसिस्टम के डिफरेंट टास्क, डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हैंडल करते हैं, राइट। यानी कि हर मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक काम होता है। कोई मॉड्यूल यहाँ पर टोकन एमिशन मैनेज करता है, तो कोई लिक्विडिटी स्टेबिलिटी को, तो कोई यहाँ पर इकोसिस्टम प्रोटेक्शन को, तो कोई सस्टेनेबिलिटी को। और इसी वजह से इन्फिनिटी डाउ को प्रोटोकॉल डाउ कैटेगरी में यहाँ पर प्लेस किया गया है। अब यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के डाउ जैसे होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डाउ जहां पर कम्युनिटी मिलकर जो है इन्वेस्टमेंट और फंडिंग डिसीजंस लेती है, सोशल डाउ जहां पर कम्युनिटी बिल्डिंग और नेटवर्किंग जो है फोकस डाउ मॉडल्स होते हैं, गवर्नेंस डाउ जहां वोटिंग और जो प्रपोजल सिस्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद आपका ये कलेक्टर डाउ जहां पर एनएफटीज और डिजिटल एसेट कलेक्ट करने वाली जो कम्युनिटी बेस्ड डाउ सिस्टम। लेकिन इन सभी में इन्फिनिटी डाउ का फोकस जो है वो प्रोटोकॉल ऑटोमेशन और इकोसिस्टम आर्किटेक्चर पर है, और इसीलिए प्रोटोकॉल डाउ को यहाँ मोस्ट पावरफुल मॉडल बताया गया, और वो है भी सही, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इन्फिनिटी डाउ के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फिलॉसफी कॉन्सेप्ट। और वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है द इन्फिनिटी लूप इकोनॉमी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पूरा इकोसिस्टम इसी फिलॉसफी के अराउंड बिल्ड किया गया है, द इन्फिनिटी लूप इकोनॉमी। इन्फिनिटी डाउ रिपीटेड ग्रोथ साइकिल पर वर्क करता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ये इकोसिस्टम एक कंटिन्यूअस लूप क्रिएट करता है जिसमें 6 मेजर स्टेप्स है। पहले यहाँ पर आप स्टेक ज्वाइन करते हैं, फिर स्टेक होता है, फिर आप अर्न करते हैं, और ये सारी चीजें अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है? अल्टीमेटली ये सारी चीजें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है रीइंफोर्स, यानी कि जो भी आप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, स्टेक करते हैं, अर्न करते हैं, उससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है? रीइंफोर्समेंट होता है, एक्सपेंड होता है, एसेंड होता है, और यही साइकिल रिपीटेटिवली चलती रहती है। यानी कि सिस्टम चाहता है यूजर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करें, रीइन्वेस्ट करें, स्टेक करें, ग्रो करें, और अल्टीमेटली जो है इकोसिस्टम एक्सपेंड होता रहे, एक्सटेंड होता रहे, रीइंफोर्स होता रहे, ज्वाइन कर रहे हैं आप, ये सारी चीजें हो रही है। और इसी कॉन्सेप्ट को इन्फिनिटी डाउ ने इन्फिनिटी लूप इकोनॉमी यहाँ पर बोला है। एंड ऑनेस्टली यही वो फिलॉसफी है जो इन्फिनिटी डाउ को सिर्फ एक अर्निंग प्लेटफॉर्म से अलग बनाती है और लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम मॉडल की तरह जो है इसे प्रेजेंट करती है। सो गाइस अब तक हमने ये सारी चीजें समझी, इन्फिनिटी डाउ क्या है, मिशन विजन क्या है, प्रोटोकॉल डाउ क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों इतना ज्यादा पावरफुल है। तो अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक टेक्नोलॉजी एरा में, राइट, टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में आज एआई, ब्लॉकचेन और ऑटोमेशन दुनिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और इन्फिनिटी डाउ भी एग्जैक्टली इसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट पर जो है
ऑब्वियसली बिल्ड किया गया है। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इन्फिनिटी डाउ एक प्रोटोकॉल डाउ है, और प्रोटोकॉल डाउ का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ही यही होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ह्यूमन की जरूरत ही नहीं, एकदम जीरो होता है। और ऑब्वियसली शुरुआत में क्रिएटर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, जिन्होंने इकोसिस्टम को क्रिएट किया, लेकिन वंस जब इकोसिस्टम लाइव हो जाता है, वंस इट गेट्स डिप्लॉयड, उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोनॉमस वे में ऑपरेट करता है, यानी कि कोई भी मैनुअल रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आज आप यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं तो किसी सिस्टम, किसी कंपनी या किसी पर्सन को नहीं दे रहे, आप ये सब कुछ ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऑटोनॉमस वे में आप यहाँ पर कर रहे हैं, और उसी से आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा। और ये एक पत्थर की लकीर है जिसे कि कोई बदल नहीं सकता है, यानी कि जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है बताया गया है, इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मतलब जिस तरीके से लिखा गया वैसे के वैसे ही ये जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ये जो भी चीजें लिखी गई है उसी तरीके से होने वाली है। कोई मैनुअल टोकन मिंट नहीं कर रहा है यहाँ पर, कोई मैनुअल इकोसिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहा है। एवरीथिंग वर्क्स ऑन मतलब थ्रू टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्री-डिफाइंड प्रोटोकॉल्स। एंड इसीलिए इसी वजह से इकोसिस्टम के बैकएंड आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी को समझते हो, आप इकोसिस्टम के साथ अपना फेथ, अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हो, और फ्यूचर में जब आप इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हो तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यार ये क्यों हो रहा है, यार ये क्या है, कहाँ हमने पैसे लगा दिए, कंपनी क्या जनरेशन कर रही है, बैकएंड में एक्चुअल प्रोसेस क्या चल रहा है, सिंपली बिकॉज आप इकोसिस्टम के कोर आर्किटेक्चर को जो है ऑलरेडी समझ चुके हो। एंड इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, इन्फिनिटी डाउ की इकोसिस्टम आर्किटेक्चर में 5 ये मॉड्यूल्स हैं जो इंटीग्रेट किए गए। और ऑनेस्टली अगर आप इन 5 मॉड्यूल्स को आपने समझ लिया ना, तो आप ये मानिए कि इन्फिनिटी डाउ का पूरा सार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मॉड्यूल्स के नाम क्या क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्वांटम एमिशन मैट्रिक्स है, उसके बाद आपका यहाँ पर हाइपरगार्ड लॉक है, क्वांटम एमिशन मैट्रिक्स, उसके बाद आपका यहाँ पर ये इन्फिनिटी सस्टेनेबिलिटी प्रोटोकॉल, उसके बाद आपका यहाँ पर ये हाइपरगार्ड, और फिर ये इन्फिनिटी सस्टेनेबिलिटी, और ये फ्लक्स लिक्विडिटी शीट। तो ये सारी चीजें, ये चारों, ये 5 प्रोटोकॉल, बस अब मैं आप लोगों को इनके बारे में समझाऊंगी। और इन्हें समझाने के लिए ये एक स्क्रीन जो अब आप लोगों के सामने, ठीक है, बस आप इसको कामली समझना, माइंड में विजुअलाइज करना चीजों को, क्योंकि यहीं से एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है कि बैकएंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है भाई, राइट। सो ओवरऑल इन्फिनिटी डाउ इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट लेयर्स जो है यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, और हर लेयर का अपना एक डेडिकेटेड रोल होता है कि भाई वो क्या करने वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं आईएसपी से, जो कि क्या है यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का ये पहली लेयर जो कि है आईएसपी इन्फिनिटी सस्टेनेबिलिटी प्रोटोकॉल, राइट। और नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि इस प्रोटोकॉल का पूरा रोल है इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना। सिंपल वर्ड्स में ये इकोसिस्टम का ब्रेन, यानी कि ये दिमाग है, डिसीजन लेयर जिसे हम कह सकते हैं। अब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सेट होता है, और आईएसपी का काम यहाँ पर क्या है? एंटायर इकोसिस्टम के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे स्टेकिंग हो, अनस्टेकिंग, बाइंग, सेलिंग, ट्रांजैक्शंस, यूजर बिहेवियर, मतलब आईएसपी हर एक एक्शन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर और एनालाइज करता है, और हर एक स्टेप पर इसकी नजर होती है, और एनालिसिस के बाद हर 12 घंटे के इंटरवल पर ये एक आउटपुट जनरेट करता है, एक कमांड पास करता है, किसको? सेकंड यहाँ पर हमारे HGL यानी कि हाइपरगार्ड लॉक, राइट। और तो सिंपल लैंग्वेज में कहो तो आईएसपी इकोसिस्टम का इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर है, और इसका एक ही गोल होता है, इकोसिस्टम हेल्दी रहे, इकोसिस्टम स्ट्रांग रहे, और इकोसिस्टम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहे। हर डिसीजन के पीछे सिर्फ इकोसिस्टम की लॉन्जेविटी और स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव होता है। अब जैसे ही आईएसपी अपना आउटपुट पास करता है, कमांड मूव करके यहाँ पर सेकंड हाइपरगार्ड लॉक के ऊपर, राइट। और नाम से ही क्लियर है, हाइपरगार्ड लॉक यानी कंट्रोल लेयर। आप सिंपल वर्ड्स में आगे जितने भी प्रोटोकॉल्स और मॉड्यूल्स काम करेंगे उसके कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस यहीं से पास होते हैं। और एचजीएल करता क्या है? आईएसपी से जो इनपुट मिलता है उसी के बेसिस पर एचजीएल नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए एमिशन रेशियो डिसाइड करता है। और गाइस, एमिशन रेशियो समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एमिशन का मतलब होता है टोकन जनरेशन, टोकन मिंटिंग, यानी किसी चीज को एमिट करते रहना, यानी कि टोकन सप्लाई क्रिएट करते रहना। और यहाँ पर आइडियल टोकन जो कंपनी का अपना खुद का नेटिव टोकन है, क्रिप्टो है, किस रेशियो में जनरेट होंगे, कितनी क्वांटिटी में जनरेट होंगे, ये डिसाइड करता है हाइपरगार्ड लॉक। यानी एग्जांपल समझ लिए, सपोज किसी ने आज
$10,000 वर्थ स्टेकिंग की। अब फ्यूचर इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कितने नए आइडियल टोकन एमिट होने चाहिए, किस रेशियो में होने चाहिए, ये सब कुछ जो है वो एचजीएल डिसाइड करता है और ये रेशियो हर 12 घंटे के लिए फिक्स्ड होता है। उसके बाद एचजीएल ये रेशियो पास कर देता है किसको, आपके नेक्स्ट यहाँ पर क्यूईएम यानी कि थर्ड हमारी क्वांटम एमिशन मैट्रिक्स, राइट। और क्वांटम एमिशन मैट्रिक्स बेसिकली एमिशन लेयर है, नाम से ही क्लियर हो रहा है ये मॉड्यूल स्पेशली टोकन एमिशन के लिए डेडिकेटेड है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो एचजीएल ने जो रेशियो डिसाइड किया यहाँ पर क्वांटम एमिशन मैट्रिक्स उसी रेशियो में टोकन मिंट करता है, यानी कि हर स्टेकिंग एक्टिविटी के बाद उसी कंट्रोल्ड एमिशन रेशियो में आइडियल टोकन जनरेट होता है। और यही से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि आइडियल टोकन की जो सप्लाई है ना वो फिक्स्ड नहीं है, वो क्या है, वो डायनेमिक है। मतलब इकोसिस्टम एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग सप्लाई एडजस्ट होती रहती है और इसी वजह से इकोसिस्टम को अडेप्टिव और इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर बोला जा रहा है। और अब आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि हर डिसीजन की स्टार्टिंग जो है आईएसपी से होती है, क्योंकि वही इकोसिस्टम का ब्रेन है, वहीं से पूरा चैनल आपका प्रोसीड यहाँ पर करता है। अब जो नेक्स्ट दो मॉड्यूल बचते हैं आपके वेलोसिटी रिसाइकल कोर और फ्लक्स लिक्विडिटी शीट यहाँ पर, अब ये दोनों मिलकर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और डिफेंस लेयर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आप डिफाई इंडस्ट्री का हिस्ट्री देखें तो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उतने ही ज्यादा अटैक्स के टारगेट बनते हैं, कभी लिक्विडिटी अटैक तो कभी वेल मैनिपुलेशन तो कभी सडन पंपिंग डंपिंग, ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड अटैक्स होते हैं और कई बार पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स तक हो जाता है और ऐसा हुआ है कई बार। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्फिनिटी डाउ ने डिफेंसिव लेयर क्रिएट की। सबसे पहले समझते हैं हम वेलोसिटी रिसाइकल कोर को, यानी कि ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी लेयर। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी लेयर यानी कि स्पेशली आइडियल टोकन की प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। अब ये करता क्या एग्जैक्टली, ये मॉड्यूल कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है, जी हाँ, और ये एंट्रीज, एग्जिट्स, बाइंग, सेलिंग, स्टेकिंग, अनस्टेकिंग, इन सभी चीजों को और जो बर्न फी कलेक्ट होती है उनको इंटेलिजेंटली मैनेज करता है। कलेक्टिव बर्न फी का एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 50% लिक्विडिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेजरी में पुश किया जाता है और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो बर्न के लिए दिया जाता है। अब टोकन बर्निंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग है सप्लाई